Good evening, ninth class. So today we are in the page number 43. I hope that the previous topic, or you can say previous video, was clear. The name of the video was Towards a New Constitution, in which we read about that after all, or you can say at the end, the British minority were persuaded, राजी कर लिया, राजी हो गए, पर they were persuaded to make a new constitution of South Africa, and their leader Nelson Mandela was freed and become the first president of South Africa, Republic South Africa, you can say. And they have decided to make a new constitution where all the person will be equal. So today's topic is about why do we need a constitution. This is very important topic कि हमको constitution की ज़रूरत क्या है, and how the South African constitution was made. So in the fourth line it is written in page number 43. I am reading, the oppressor and oppressed in this new democracy were planning to live each other equal. बहुत मुश्किल है कि जिन लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, आपकी प्रॉपर्टी ले लिया, आपको अपार्थाइड सिस्टम आप में लगाया, आपके सबसे चहेते नेता को 28 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट दिया, और अब आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है और सबको इक्वल रहना है. दिस इज़ वेरी 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 पेनफुल फॉर द black people. But Nelson Mandela has decided that we should all live together in equal manner. So we have to make a constitution in such a manner where black and white should live together. And especially for the blacks, it is very painful. So I am reading in page number 43, right hand side, second line. The black majority was keen to ensure that the democratic principle of majority rule was not compromised. Black peoples ने ये अपने पास एक पावर रखी कि दैट द मेजोरिटी, बिकॉज दे आर इन मेजोरिटी, सो मेजोरिटी शुड बी रूल, एंड वन पर्सन वन वोट के हिसाब से उनको ही मेजोरिटी मिलेगी तो उन्हीं की गवर्नमेंट बनेगी. तो उनको ये डर था कि कहीं नेल्सन मंडेला हमसे ये पावर ना ले ले, कि मेजोरिटी वाली पावर ना ले ले. बट नेल्सन मंडेला है डिसाइडेड दैट वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, दिस रूल विल कंटिन्यू इन साउथ अफ्रीका सो दैट द गवर्नमेंट ऑफ ब्लैक विल बी मेड. द वाइट माइनॉरिटी वॉज कीन टू प्रोटेक्ट इट्स प्रिविलेज एंड पावर एंड प्रॉपर्टी. जबकि जो वाइट माइनॉरिटी है उनका जो मेन फोकस था वाज दैट हमारी प्रॉपर्टी कहीं ये ब्लैक लोग ना छीन ले, जो हमने इनको गुलाम बनाते समय अपनी प्रॉपर्टी बनाई है, कहीं ऐसा ना हो कि ये न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे रूल बना दें और हमसे हमारी प्रॉपर्टी ले लें. सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक ए ट्रस्ट ऑन ईच अदर. दोनों ही कम्युनिटी को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं था. इन पेज नंबर 44, आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशन, बहुत लॉन्ग नेगोशिएशन हुआ, both parties agreed to compromise. White, black, they compromise with each other. The whites agreed to the principle of majority. White को ये मानना पड़ा कि अब majority in South Africa is of blacks, so the majority of rule will be in their favor. And one person one vote, they agreed. They also agreed to accept some basic rights for the poor and workers. कुछ basic ऐसे rights बनाए जाएं जिनसे कि poor और workers का ध्यान, गवर्नमेंट का ध्यान पुअर और वर्कर्स की तरफ जा सके और ये सब पूरा हो सके. द ब्लैक्स एग्रीड दैट मेजोरिटी रूल नॉट बी एब्सोल्यूट. ब्लैक्स ने भी वाइट की कुछ बात मानी कि हम, बिकॉज वी आर इन मेजोरिटी, वी विल मेक द लॉज इन आवर फेवर, बट दैट शुड नॉट बी एब्सोल्यूट. ऐसा नहीं है कि हम आपकी प्रॉपर्टी ले लेंगे या आपको यहाँ से भगा देंगे. एब्सोल्यूट नहीं होना चाहिए. एब्सोल्यूट का मतलब मोनोपोली नहीं होना चाहिए. They agreed that the majority would not take away the property of white minority, and they also agreed, they means blacks also agreed that they will not take the property of whites. So the only way to build and maintain trust in such a situation is to write down some rules of the game that everyone should abide by. But फिर भी एक दूसरे के ऊपर दोनों को भरोसा नहीं था, white को blacks के ऊपर और blacks को white के ऊपर. So what they have decided that they have write some rules on in the piece of paper, and that rules which are followed by, which are you can say respected by both the my communities, is called constitution. वो हमारे rules बन गए. Finally, these basic rules decide the rights of citizens. These rules will work only if the winner cannot change them very easily. और ऐसा नहीं है कि अगर whites blacks की गवर्नमेंट बन जाती है, they are majority और 100 में से 99 सीट्स वो जीत जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सब रूल्स अपने ही फेवर में बना ले. So they have write all the rules and regulation of the constitution. But all over the world, दिस सेट ऑफ बेसिक रूल्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन. जो ये सेट होता है बेसिक रूल्स का, विच इज रिटन, इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन. ओके,
So in page number 44, right hand side, 4 dots are given, blue dots, you can say squares are given. I am just reading these, and what your homework is, जो lines मैंने छोड़ दिए हैं, कुछ पैराग्राफ छोड़ दिए हैं, जो that you have to write. First, a constitution does many things. Why do we need constitution? This is the topic of this. This is the topic, heading of this topic. So these are the first. It generates a degree of trust and coordination that is necessary for different kind of people to live together. अगर आप हम साउथ अफ्रीका में ना जाएं, हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया में so many communities are living, so many language culture are there. So constitution डिग्री ऑफ ट्रस्ट बनाता है. जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश, सब अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं. उन सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक है. पहले जम्मू कश्मीर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से थोड़ा अलग था, बट नाउ इट कम्स अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन. सो इट मेक्स ए डिग्री ऑफ ट्रस्ट. हम सबको एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बनाता है. ये कॉन्स्टिट्यूशन के फ़ायदे हैं. सेकेंड, इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इट इज़ रिटन दैट हाउ आवर गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन. और किस आदमी के पास कौन सी पावर होगी क्या डिसीजन लेने की. ठीक है. तो अगर हमको रोड से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हमको किसके पास जाना है. अगर हमको अपने बच्चे की पढ़ाई से लेके प्रॉब्लम है तो हमको किसके पास जाना है. अगर हमको लॉकडाउन की कोई प्रॉब्लम है जो अभी चल रहा है तो हमको किसके पास जाना है. सो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब लिखित होता है कि किस प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम कौन आदमी सॉल्व करेगा. हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड हु विल हैव द पावर. नेक्स्ट, इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट. ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट एब्सोल्यूट हो जाए और गवर्नमेंट अपने हिसाब से कुछ भी रूल्स बनाए. गवर्नमेंट के ऊपर भी कुछ ना कुछ लिमिट्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लगाता है. जो भी नियम कानून है, ऐसा कोई आदमी, नो वन इन आवर इंडिया इज़ अबव द कॉन्स्टिट्यूशन और अबव द लॉ. ओके. तो पावर को थोड़ा सा लिमिट करता है, लिमिट रखना पड़ता है. फोर्थ, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ पीपल अबाउट क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी. लोगों से अच्छे रूल रेगुलेशन का फीडबैक लेते रहते हैं ताकि हम आगे आने वाले सालों में ऐसे रूल्स बनाएं, आने वाले ईयर्स में ऐसे रूल बनाएं, सो दैट टू बी ए गुड सोसाइटी एंड टू डेवलप आवर कंट्री. देन ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरली डेमोक्रेटिक. बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिन कंट्रीज़ के पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक ही है. बट ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव कॉन्स्टिट्यूशन. ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि जिस कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि डेमोक्रेटिक हो ही हो. बट जो कंट्री डेमोक्रेटिक है, तो फर्स्ट थिंग ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री इज़ दैट इट शुड हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन होना ज़रूरी. ये दोनों ही पॉइंट मैं दोबारा से बता रहा हूँ. अगर किसी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक होगा. बट अगर किसी कंट्री डेमोक्रेटिक है तो उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन होना ज़रूरी है. This is the importance of constitution. So I hope this video you will, after seeing this video you will be enjoyed, and be safe at your home. Thank you.